السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ ان خبروں کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ڈائنامک سکسیس دا جونیئر کالج، اپوزٹ مادنا پیٹ منڈی، سعید آباد، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 04029701124 اینڈ انسٹیٹیوٹ آف سکسیس اسکولز۔ تشکیل سے بھاری نقصان، 5 اموات، 40 گاؤں کا دیگر مقامات سے رابطہ ٹوٹا، 35 سے زائد تالابوں کے پشتے ٹوٹ گئے، سڑکوں کو بھاری نقصان۔ وزیر جنگلات اندرا کرن ریڈی کا دورہ۔ متلاشیان روزگار کے لیے نئی پہل، ہزاروں ملازمتیں دستیاب، ڈیجیٹل امپلائمنٹ ایکسچینج آف تلنگانہ۔ عثمان ساگر میں سطح آب ناپنے نظام دور کا نادر آلہ، پانی خطرے کے نشان کو پہنچنے پر گراموفون بج اٹھتا تھا، حکومت جلد مرمت کی خواہاں۔ شہر حیدرآباد بڑی کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاری کے مرکز کے طور پر ابھر رہا، ون پلس اسمارٹ ٹی وی بھی حیدرآباد میں ہوگا تیار۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madana Pet Mandi, Saeed Abad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. جرمنٹن ہاسپٹل، آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکالوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ خبروں کی تفصیل۔ ریاست میں گزشتہ ایک ہفتے سے جاری بارش نے اضلاع میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے، جس کے نتیجے میں 5 اموات ہوئی۔ ندیاں، نالے، تالاب لبریز ہو کر بہہ رہے، نشیبی علاقوں میں پانی داخل ہو جانے سے عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی، کئی اہم شاہراہیں بہہ گئی، مختلف مقامات پر سڑکوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ متحدہ اضلاع عادل آباد، نظام آباد اور کریم نگر کے کئی منڈلز میں پانی کے بہت زیادہ نقصانات دیکھے گئے۔ بارش سے پیدا شدہ صورتحال تشویشناک منظر پیش کر رہے۔ اضلاع منچریال، کمرمبھیم، آصف آباد میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ پرانیتا اور پینوگنگا ندیاں لبریز ہو کر بہہ رہی، منچریال کے قریب رالا واگو بہہ رہی۔ یہ تمام پانی شہر منچریال کے NTR نگر، رام نگر اور LIC کالونی کے مکانات میں داخل ہو گیا۔ ضلع نرمل میں سیلاب کا اثر کم ہونے کے باوجود بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے اور سورنا پروجیکٹ کا پانی کئی علاقوں میں داخل ہو گیا۔ تقریباً 40 تالابوں کے پشتے ٹوٹ گئے۔ نرمل کی تمام سڑکیں ناکارہ ہو گئی۔ سورنا پروجیکٹ سے GNR کالونی میں سیلاب کا پانی پہنچنے سے کیچڑ کے وزن 500 برقی کھمبے، 50 ٹرانسفارمرز زمین دوز ہو چکے۔
निर्मल, कंटला, दिलावरपुर, भैंसा, संगापुर, मंडलाल के हुदूद में सैलाब से मुतासरा इलाकों का वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने दौरा करते हुए वहां का मुआयना किया और वह आवाम को तयखुन दिया कि वो हुकूमत की जानिब से उन्हें इमदाद फराहम करवाएंगे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने या मुलाजिमतों की दस्तियाबी से मुतल्लिक इतलात हासिल करने के लिए डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तेलंगाना DEET का आगाज किया है। इस पहल के जरिए मुतलाशियां रोजगार मुलाजिमत के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। मुलाजिमतों की दस्तियाबी पर उन्हें मतला किया जाता है। सरकारी मुलाजिमतों, वॉक इन इंटरव्यूज, अलर्ट, भर्ती मुहिम और करियर सासी के मशवरे वगैरह रोजाना हासिल किए जा सकते हैं। वर्क रूट, वोडेट, वर्क रूट एंड DEET का ये इश्तराक है। इस पर जुमला 4,65,000 से ज्यादा मुलाजिमतों के मौके दस्तयाब हैं। उस्मान सागर गंडीपेट में पानी की सतह नापने के लिए निजाम दौर का ग्रामोफोन जैसा एक आला अब एक बार फिर कारगर बनाने की कोशिश की जा रही। ये आला निजाम दौर में उस्मान सागर में सतह आब नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और ये आला सैलाब के खतरे से आगाह भी करता था। रियासती हुकूमत इस आले की जल्द मरम्मत की ख्वाह है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म-ओ-नस्क अरविंद कुमार ने उस्मान सागर और हिमायत सागर का दौरा किया था। उन्होंने अपने ट्विटर पर कहा था कि उन्होंने उस्मान सागर में एक बहुत ही दिलचस्प सैलाब के खतरे से खबरदार करने वाला आला देखा है। ये ग्रामोफोन की तरह का है। जैसे ही उस्मान सागर में पानी की सतह खतरे के निशान तक पहुंचती, ये ग्रामोफोन बज उठता था। इस पर आने वाली हर लाइन पानी की हकीकी सतह आप जाहिर करती थी। वो कोशिश करेंगे कि इसको जल्द अज जल्द कारगर बनाएं। शहर हैदराबाद बड़ी कंपनियों के लिए सरमायाकारी के मरकज के तौर पर उभर रहा। तेलंगाना के दारुल हुकूमत में पहले ही कई आलमी और बड़ी कंपनियों ने अपने दफातर और मराकज कायम कर लिए हैं। अब एक और बड़ी कंपनी वन प्लस ने भी हैदराबाद में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने का फैसला किया। कहा जा रहा है कि हैदराबाद में वन प्लस की स्मार्ट टीवी तैयार करते हुए सारे मुल्क में रवाना की जाएगी। शहर से काम करने वाली रेडियंट अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का वन प्लस स्मार्ट टीवी से इश्तराक चल रहा और अब ये कंपनी शहर में 32 था 65 इंच के वन प्लस स्मार्ट टीवी तैयार करेगी। ये कंपनी पहले ही सैमसंग और Xiaomi जैसी कंपनियों के टीवी सेट्स तैयार कर रही। इससे तकरीबन 40% की जरूरियात की तकमील होती है। अब हैदराबाद में वन प्लस स्मार्ट टीवी भी तैयार की जाएगी और ये बाद में हिंदुस्तान की तमाम रियासतों को रवाना की जाएंगी। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि गुज़िश्ता 7 साल में महकमे पुलिस की 29,000 जायदादों पर तक़र्रुरात किए गए, जिसमें पहली मरतबा ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत का इफ्तिताह करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया जो 4.21 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना की पुलिस अपनी फर्ज शनासी और फ्रेंडली पुलिसिंग में सारे मुल्क में शोहरत रखती है। अलहदा रियासत की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर ने महकमे पुलिस को खुसूसी अहमियत दी है और कई इस्लाहात लाई हैं, जिसमें डीजीपी महेंद्र रेड्डी का भी काफी ताउन रहा है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर ने महकमे पुलिस को 700 करोड़ रुपए मुख्तस करके भारी बजट मंजूर किया, जिसकी बदौलत महकमे पुलिस में जदीद आलात से लैस मुख्तलिफ अकसाम की गाड़ियां खरीदी गई। तेलंगाना के पुलिस स्टेशन इमारतों को कॉरपोरेट दफातर के तर्ज पर तामीर किया जा रहा। इन इमारतों में पुलिस मुलाजमीन और दरख्वास्त गुजारों की सहूलियात का ख्याल रखा गया है। अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद पुलिस ओहदेदारों ने बेहतरीन खिदमात का मुजाहरा किया है। तेलंगाना पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करके मसाइल का हल तलाश कर रही। सीसीटीवी तनसीब में तेलंगाना मुल्क भर में सरफहरिस्त मुकाम रखती है। मुल्क भर के 64% सीसीटीवी कैमरे सिर्फ तेलंगाना में मौजूद है। तेलंगाना में फिलवक्त 7 लाख कैमरे नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर भी हैदराबाद को सीसीटीवी कैमरों की तनसीब में 16वां मुकाम हासिल हुआ है। तेलंगाना में हुकूमत ख़वातीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दे रही। शी टीम्स का क़याम अमल में लाया गया है, जिसके मुस्बित नताइज बरामद हो रहे। तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कंट्रोल में है। फसादात का खात्मा हो गया। ममनुआ नक्सलाइट्स की सरगर्मियां खत्म हो गई। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अरकान खानसास कौंसिल सैयद अमीनुल हसन जाफरी,
वानी देवी, डीजीपी एम महेंदर रेड्डी, पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार के अलावा पुलिस के दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ीर दाखिला जनाब मोहतरम महमूद अली साहब, रियासत तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब महेंदर रेड्डी साहब, शहर हैदराबाद के कमिश्नर और कोतवाल मोहतरम जनाब अंजनी कुमार साहब, मेंबर ऑफ शहर हैदराबाद के और तेलंगाना रियासत के सीनियर IPS ओहदेदारान, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, साउथ जोन के DCP और साउथ जोन के तमाम पुलिस के ओहदेदारान, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज साउथ जोन में हुकूमत तेलंगाना ने जो चंद्रायगुट्टा पुलिस स्टेशन की मंजूरी दी थी, जिसको करीब 4 करोड़ की लागत से एक नई पुलिस स्टेशन की इमारत का आज यहाँ पर वज़ीर दाखिला के हाथों से इफ्तिताह हुआ। और मौजूदा दौर के लिए, मौजूदा पुलिसिंग के लिए, मौजूदा हालात में बहुत ज़रूरी है कि पुलिस स्टेशन की इमारतों को अगर दुरुस्त किया जा सकता है तो दुरुस्त करना ज़रूरी है, या फिर अगर उसके असर में तामीर हो सकती है तो उसकी तामीर भी कराना ज़रूरी है। इस सिलसिले में मैं जनाब वज़ीर दाखिला की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि साउथ जोन में ऐसे कई पुलिस स्टेशन हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882। सिर्फ सुनहरे ख्वाबों से नहीं बल्कि घर बनते हैं मजबूत इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ये करेंगे आपके ख्वाबों को सच। MS टेक्नो एंड कंपनी लेकर आए हैं एक शानदार व नायाब प्रोजेक्ट जिसका नाम है साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। नवाबों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर, आजमपुरा फरहतनगर इलाके में एबिट्स कोठी और मलकपेट से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर ग्राउंड प्लस 5th फ्लोर की बिल्डिंग, जहां आपके लिए 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स हैं दस्तयाब। जकी एंड एसोसिएट्स की जानिब से उम्दा व बेहतरीन स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का मायानाज स्ट्रक्चर, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, पार्किंग फैसिलिटी, मस्जिद और प्लेग्राउंड की खरीद, GHMC अप्रूव्ड लोन और इंस्टॉलमेंट की भी सहूलत। बुकिंग शुरू है तो देर न करें और मजीद तफसीलात के लिए कांटेक्ट करें 9959023786 या फिर 9505321920 पर। MS टेक्नो एंड कंपनी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब।
तेलंगाना में सरकारी व खानगी 34 मेडिकल कॉलेजेस में जुमला 5,240 MBBS निशस्तें हैं। उनमें 11 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 1,790 और 23 खानगी मेडिकल कॉलेजेस में 3,450 निशस्तें हैं। महकमे सेहत व खानदानी बहबूद ने बताया कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के जुमला निशस्तों में 15% यानी 268 MBBS निशस्तें ऑल इंडिया कोटे में शामिल होती हैं। तमाम रियासतों से 2021-22 के लिए ऑल इंडिया कोटे में जुमला 6,515 MBBS निशस्तें शामिल होंगी। इस सिलसिले में मरकजी महकमे सेहत ने तफसीलात पेश करके बताया कि मुल्क भर में 558 सरकारी व खानगी मेडिकल कॉलेजेस में जुमला 83,275 MBBS की निशस्तें हैं, जिसमें सरकारी 289 मेडिकल कॉलेजेस में और 43,435 निशस्तें हैं। 269 खानगी मेडिकल कॉलेजेस में और 39,840 MBBS की निशस्तें हैं। इन तमाम निशस्तों को नीट के महसूला मार्क्स की बुनियाद पर पूरा किया जाता है। तेलंगाना जनरल समिति सदर प्रोफेसर कोदंडा राम ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना हुकूमत भी फोन टैपिंग की मुरतकब है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पेगासस को इंसानी हुकूक रहनुमाओं, अपोजिशन और सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा। उन्होंने ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ मुत्तहिदा मुहाज पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पेगासस से नए अंदाज से फोन टैपिंग की जा रही। ఈ సాఫ్ట్వేర్ను ఏదో ఒక రూపంలో ఒక వ్యక్తి ఫోన్లోకి పంపిస్తారు. ఆ పంపించిన తర్వాత అది ఆ ఫోన్లో చేరి ఆ ఫోను మైక్రోఫోన్కి కానీ కెమెరాకి కానీ ఒక ఇతర ఫోన్లకు అనుసంధానం చేస్తుంది, కలుపుతుంది వాటిని. ఆ కలిపిన తర్వాత ఈ ఫోన్లో మాట్లాడేవి కానీ వచ్చిన సందేశాలు కానీ ఆ ఫోన్ వాట్సాప్కి వచ్చిన మెసేజెస్ కానీ లేకపోతే ఆ ఫోన్కి వచ్చేటువంటి ఈ మెయిల్కి వచ్చే మెసేజ్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫోటోలు కానీ అవన్నీ కూడా అవతలి వ్యక్తి। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत में कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया। तीसरी लहर के अंदेशों पर हॉस्पिटल्स में तिब्बी सहूलतों से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। हॉस्पिटल्स में PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के क़याम, सरकारी हॉस्पिटल्स के तमाम बेड्स की ऑक्सीजन बेड्स में तब्दीली, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को ज़्यादा जमा करने गुंजाइश में इजाफा और पेडियाट्रिक ऑक्सीजन ICU बेड्स की तादाद में इजाफा, ज़िले हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करने के अलावा दीगर उमूर का जायजा लिया गया। तिब्बी अमले की मखलूआ जायदादों को फौरी पूर करने, जरूरी मुताबिक अद्वियात का स्टॉक रखने, डायग्नोस्टिक आलात की फराहमी, टेस्टिंग किट्स और दूसरी जरूरी अशिया को दस्तियाब रखने की चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को हिदायत दी। हुकूमत की जानिब से हाल ही में मंजूर करदा 7 मेडिकल कॉलेजेस की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव की सालगिरह के मौके पर गुज़िश्ता रोज मासाब टैंक अहमद नगर दरगाह अहमद बड़े पाक पहुंचकर दरगाह में हाजिरी दी और तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव की लंबी उम्र व सेहत के लिए दुआएं भी की। इस मौके पर उनके हमराह दीगर TRS कारकुन भी मौजूद थे। तमाम TRS के कायदीन फसलान सर पर जो बहुत बड़े बुजुर्ग है सैयद अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिर दी हैं और उनके मुतवल्ली साहब इम्तियाज़ साहब अहमद भाई साहब उन्होंने गिड़ा कर अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह ताला आज KCR साहब के बेटे साहिबजादे KT रामाराव साहब का जन्मदिन है, उनके लिए ख़ास तौर से उनकी सेहत और तंदुरुस्ती दराजी उम्र के लिए दुआ की और हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए भी गिड़ा कर दुआ की गई, उन्हें भी अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्त रखे और उनकी हुकूमत हमेशा कायम रखे। और वो एक ऐसे बेबाक और सेकुलर कायद है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कोई ऐसे कायद नहीं है जो KCR साहब की तरह, और उनके बेटे जो KT रामाराव साहब भी बहुत अच्छे कायद हैं। वो हमारी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और बहुत लगन से काम करते हैं इस स्टेट को डेवलप करने के लिए। ख़ास तौर से इस प्रोग्राम में शरीक होने वाले हमारे पार्टी के चीफ व्हिप साहब, काउंसिल के चीफ व्हिप प्रभाकर साहब, MLC साहब, हमारे बंडी रमेश साहब यहाँ सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज,
आनंद साहब नामपल्ली के इंचार्ज, हमारे ज़की भाई साहब, बासित भाई साहब, मुनीर भाई साहब, अजीज़ साहब, मज़हर भाई साहब, कामरान साहब, बहुत से कायदीन हमारे साथ में यहाँ पर है। हमारे दरगाह शरीफ आने का यह है कि अल्लाह के बुज़ुर्गों के, अल्लाह के वलियों के पास जाकर दुआ करता है, अल्लाह ताला उन्हें कबूल कर लेता है, क्योंकि वलियों ने बहुत लोगों की खिदमत की और दीन का काम किया। अल्लाह नेक बंदे हैं वो, इसीलिए इस दरगाह पर आज हम लोग हाजिर हुए। और ख़ास तौर से हमारे KT रामाराव साहब जो नौजवान कायद है, उनकी दराजी उम्र, उनकी तरक्की, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ की गई। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब के लिए भी गिड़ा कर दुआ की गई, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्त है और उनका इख्तिदार हमेशा कायम है। हिंदुस्तान में शायद कोई लीडर KCR साहब के मुकाबले में नहीं, जो सेकुलर लीडर है, सारे लोगों को एक साथ देखते हैं और जो हमारी स्टेट की तरक्की है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। उनके लिए, उनकी सेहत के लिए आज यहाँ पर दुआ की गई और सब हम हमारी तमाम की तरफ से हम KT रामाराव साहब के उनकी जन्मदिन तक मुबारकबाद भी देते हैं। और हर कोई आज बहुत से पौधे लगाए गए, क्योंकि तेलंगाना में ग्रीनरी की ज़रूरत है और जब ग्रीन शहर रहता है तो वहाँ ऑक्सीजन मिलती है, सेहत अच्छी होती है। KT रामाराव के जन्मदिन पर संतोष साहब जो हमारे MP साहब ने प्रोग्राम दिया था कि 3 करोड़ झाड़ लगाएंगे, तो प्रोग्राम मुकम्मल किया जा रहा है। हर आदमी आज हर तेलंगाना के अंदर हर गली गली हर विलेज में पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके लिए मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम तमाम की जानिब से KT रामाराव साहब के दिल की गहराइयों से उनकी जन्मदिन को मुबारकबाद। मीडिया नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिल रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तश्कील भारी नुकसान, 5 अमवात, 40 गांव का दीगर मुकामात से राब्ता टूटा, 35 से ज्यादा तालाबों के पुश्ते टूट गए, सड़कों को भारी नुकसान। वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी का दौरा। मुतलाशियान रोजगार के लिए नई पहल, हजारों मुलाजिमतें दस्तयाब। डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ तेलंगाना। उस्मान सागर में सतह आब नापने निजाम दौर का नादर आला। पानी खतरे के निशान को पहुंचने पर ग्रामोफोन बज उठता था। हुकूमत जल्द मरम्मत की ख्वाहा। शहर हैदराबाद बड़ी कंपनियों के लिए सरमायाकारी के मरकज के तौर पर उभर रहा। OnePlus स्मार्ट टीवी भी हैदराबाद में होगा तैयार। इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।